Assalamu alaikum. Today I'll show you how to create a list in HTML. So let's start. हमारे पास HTML में 3 टाइप्स के लिस्ट्स होते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था. कुछ टेक्स्ट हमने लिखा था and we did a customization on that text, like we changed its size, color, and we changed the background color, etc. So paragraph हमने देखा क्या होता है, HR tag देखा, break, ये सब हमने देखा. So today I'll show you कि list हम कैसे create कर सकते हैं in HTML. So पहले मैं क्या करती हूँ, I will change the color, background color, and ये text जो है थोड़ा सा मैं इसका साइज कम कर देती हूँ. आप देखिए. Now जो भी हमें करना है तो हम इसी फाइल में करेंगे, ठीक है. So lists क्या होते हैं? Lists HTML, it offers 3 ways for specifying lists of information. And जो भी list हम create करते हैं, it must contain one or more list items. So in HTML we have 3 types of lists. One is unordered list, second one is ordered list, and third is a definition list. And we will see all these lists one by one. So हम यहाँ पे एक list create करते हैं. First one, that is an unordered list. So unordered list क्या होता है? It's a collection of related items that have no special order. या हम बोल सकते हैं this list doesn't have a sequence. So इसमें हम जो भी items mention करेंगे वो items जो होंगे उनका कोई specific order नहीं होगा. So and this list is created by using a tag. That tag is referred as UL. UL stands for unordered list. Got it? Remember, this is a container tag. We have to mention its end tag, and in between this UL on and off tag, we have to mention its items. So हम एक list create करेंगे यहाँ पे, जैसे simple list of fruits. Got it? So यहाँ पे मैं heading mention कर रही हूँ, list of fruits. So यहाँ पे मैं items अब mention करने हैं. So items जो आपको mention करने हैं वो आप करेंगे using li tag. So li stands for list items. यहाँ पे आप items mention करेंगे like mango. This is the first item, and remember this is also a container tag. You can mention another item using li tag. So यहाँ पे आप लिखेंगे second, यहाँ पे आप लिखेंगे li n tag, and जितने भी items आपको यहाँ पे mention करने हैं, you can mention those items using li start and end tag. So यहाँ पे मैंने 3 items mention किए हैं. It's your choice. आपको कितने items mention करने हैं? We will see this. We will see the result. देखिए, लिस्ट एक क्रिएट हो गया किनका? फ्रूट्स का. जो हमने हेडिंग यहाँ पे लिखी थी लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, यहाँ पे लिस्ट क्रिएट हो गया. एंड यू कैन सी यहाँ पे जो आइटम्स है इनका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है. दीज आर नॉट इन सीक्वेंस. सो दिस लिस्ट इट्स मार्क्ड विद अ बुलेट. जो भी आइटम यहाँ पे मेंशन हो रहा है उनके सामने एक बुलेट आ रहा है, एंड दिस बुलेट इज नोन एज अ डिस्क. सो बाय डिफॉल्ट इसका जो वैल्यू आता है, बुलेट जो आता है, दैट्स अ डिस्क. सो आपने देखा होगा वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलेट्स. आप वो बुलेट्स चेंज कर सकते हैं. तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं, यहाँ पे ये जो बुलेट है ये सर्कल टाइप या डिस्क जिसको हम बोलते हैं,
ये नहीं आए, कोई और आए. So we can specify that using its type attribute. So UL tag का हम type attribute mention करते हैं. तो यहाँ पे it can take different possible options. So this type attribute, it is used to specify the type of bullet you like. So by default ये disk होता है and it can take different options like अगर आप चाहते हैं square shape में एक bullet आ जाए, so आप square mention करेंगे, you will see the result. देखिए bullet जो है change हो गया है. It can take another option, circle. Got it? Circle आप देखिए, so different bullet आ गया. Circle it's same as a disk but it's hollow. Got it? So जब आप कोई type mention नहीं करते, by default इसका value आ जाता है, means bullet आ जाता है this disk. So if you want to if you want to specify another type of bullet, you can do that using this type attribute. So यहाँ पे हम एक काम करते हैं, I will change its font. ये font आ रहा है जो हमने previous lecture में दिया था इसको. Hello, how are you? So I will remember this font. It's the container tag. So मैं चाहती हूँ यहाँ से जो है this list जो आज हम बनाने जा रहे हैं different font आ जाए. So आप यहाँ पे क्या करेंगे, you will mention its end tag and this P. हाँ, remember P is also a container tag. You have to mention जहाँ पे आप paragraph end करना चाहते हैं, you have to end it somewhere. So यहाँ से आप चाहते हैं कि different type of formatting हम करें, तो आप यहाँ पे फिर से font mention करेंगे. I will just change the color, size. So यहाँ पे मैं साइज थोड़ा सा बड़ा ले रही हूँ, 6. So देखिए, got it? So this is an unordered list. तो same, अब हमारे पास दूसरी टाइप का this list है, that's known as an ordered list. It's same as an unordered list, but यहाँ पे हमें जो ordered list है, इसमें क्या होता है, if you want to put your items in a numbered list instead of these bullets, then at that time you will use ordered list, and this list is created by using OL tag. So यहाँ पे OL stands for ordered list. Same, remember this is a container tag. You have to mention its end tag, and in between the start and end tag you have to mention its item. So यहाँ पे हम और एक लिस्ट बनाने जा रहे हैं, जैसे लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स. सो अब आप इसके आइटम्स मेंशन करेंगे, सेम ऐसी जैसे आपने प्रीवियस लिस्ट में देखा यूजिंग li टैग. तो आप यहाँ पे आइटम्स मेंशन कर सकते हैं. जैसे टैटू, सेम यहाँ पे दिस इज अ कंटेनर टैग. सो आप मेंशन करेंगे, यू विल क्लोज दिस. यहाँ पे और आइटम्स आप मेंशन कर सकते हैं. आप यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ आइटम्स मेंशन कर सकते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस. सो मैंने यहाँ पे 3 आइटम्स क्रिएट कर दिए दिस ऑर्डर्ड लिस्ट में. आई विल सेव दिस. देखिए दूसरा लिस्ट हमने बनाया वेजिटेबल्स का, सेम ऐसी जैसे हमने प्रीवियस लिस्ट बनाया, बट डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पे जो आइटम्स है इनका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर है. जहाँ पे ऑर्डर मेंशन जरूरी करना हो आपको, वहां पे आप ये वाला लिस्ट यूज करेंगे, जहाँ पे कोई प्रायोरिटी आपको रखनी हो. सो बाय डिफॉल्ट आपने देखा था यहाँ पे बुलेट आता है डिस्क, एंड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो नंबरिंग होती है इट्स अ डिफॉल्ट केस न्यूमरल. गॉट इट? सो इफ यू वांट टू चेंज दिस नंबरिंग, आप चाहते हैं कि नंबरिंग आप चेंज करें, सो यू कैन डू दैट सेम विद द हेल्प ऑफ इट्स टाइप एट्रीब्यूट. सो टाइप एट्रीब्यूट आप इसका मेंशन करेंगे. सो दिस टाइप
it specifies the type of numbering you like, and by default ये this numbers होते हैं. You can change this. We have different options like अगर आप चाहते हैं lower case letters, upper case letters. So lower case चाहते हैं तो यहाँ पे आप small a लिखिए. You save this. आप देखिए इसकी जो नंबरिंग है वो चेंज हो गई तो लोअर केस लेटर. सेम अगर आप चाहते हैं अपर केस लेटर तो यहाँ पे आप कैपिटल ई मेंशन करें. देखिए सो आप चाहते हैं यहाँ पे आप वो अपर केस न्यूमरल्स आए. सो कैप्स लॉक करके आई आप प्रेस करें. देखिए जिनको हम रोमन नंबर्स भी कहते हैं. या आप चाहते हैं स्मॉल केस न्यूमरल्स तो स्मॉल आई. So it can take different possible options like uppercase letters and numbers, small case letters and numbers. By default जो होता है that is the numerals. Got it? So अब अगर आप चाहते हैं ये जो numbering है by default ये start होती है from 1. Got it? And उसके बाद increment होता है by 1 on each step. So अब अगर आप चाहते हैं you want to specify the starting point of the numbering. You want to specify, आप चाहते हैं कि 1 से start नहीं हो, 3 से start हो, 4 से start हो. So at that time आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे और एक attribute mention करेंगे start. So जो start होता है it specifies the starting point of the numbering you need. जो भी जिस टाइप की नंबरिंग आपने यहाँ पे रखी है उसके बाद अगर आप start attribute mention करते हैं तो आप चाहते हैं कि नंबरिंग जो है 1 से स्टार्ट ना हो, 4 से स्टार्ट हो या 5 से स्टार्ट हो. तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे वैल्यू 1 2 3 4. गॉट इट? सो यू विल सेव दिस. यू विल सी द रिजल्ट. देखिए दी स्मॉल न्यूमरल्स तो आ गए बट नंबरिंग जो है स्टार्ट हो गई फ्रॉम 5. गॉट इट? दिस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट. Now we have another type of, remember this start attribute is of OL tag, not UL tag. So we have another type of list, that's a definition list. So definition list क्या होता है? It's used where entries are listed like in a dictionary or encyclopedia. So ये जो definition list होता है, it's an ideal way to present a glossary. Got it? So हमारे पास इसमें टोटल 3 टैग्स का यूज किया जाता है while creating a definition list. One is DL. DL stands for definition list. Remember this is a container tag and in between DL start and end tag we have to mention 2 other tags. One is we have to define term. So for that we have a tag DT, definition term. So यहाँ पे आप term एक लेंगे like HT. If you want to define this term, अगर आप चाहते हैं ये जो term आपने यहाँ पे mention कर ली, if you want to define this, so आप क्या करेंगे using DT. आपको ये define करना है using DD tag. So this DD it defines the term definition. So यहाँ पे आप mention करेंगे like HTML, this stands for hypertext markup language. तो यहाँ पे आप इसका end tag mention करेंगे. So ये एक term हमने ली. Likewise you can mention here different terms. like यहाँ पे मैं और एक term mention कर रही हूँ. So we have here another term, DT, sorry.
यहाँ पे मैं डिफाइन कर रही हूँ यूजिंग dd टैग. So this HTTP stands for hyper text transfer protocol. तो यहाँ पे मैं n टैग मेंशन कर रही हूँ. We will save this. थोड़ा सा मैं पहले इसका साइज कम करती हूँ. फाइन. देखिए हमने एक डेफिनेशन लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया. सो जब भी आपको डेफिनेशन मेंशन करनी हो, इन दैट केस यू विल क्रिएट अ डेफिनेशन list. Now we have here another concept. That concept is known as nested list. Now we can say nesting of a list. So nesting क्या होता है? Nested list or we can say a sub list. So it's a list within a list. So अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपने कोई list create की है, if you want to create another list within this list, so that is known as nested of lists, या nested lists or nesting of lists, or we can say sub list. And if you want to create a sub list, it's actually, remember, जब भी आपको कोई sub list create करना हो, you will create a child of a list item. Means आप एक child create कर रहे हैं. आप वो child this list का नहीं कर रहे. You are actually creating a child of a list item. So like मैं चाह रही हूँ यहाँ पे ये जो item है इनमें से कोई मतलब सब लिस्ट में क्रिएट करना चाहती हूँ. So आप क्या करेंगे? लिस्ट आइटम का एक चाइल्ड क्रिएट करेंगे. लाइक मैं यहाँ पे ये जो एप्पल आइटम है इसका मैं एक सब लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ, एक चाइल्ड क्रिएट कर रही हूँ. तो यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना चाहते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट, जो भी आपकी मर्जी है, जो भी आप बनाना चाहते हैं. लाइक मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ सेम अनऑर्डर्ड लिस्ट. सो अनऑर्डर्ड विद इन दिस अनऑर्डर्ड. तो यहाँ पे मैं और एक सब लिस्ट क्रिएट करना. सेम प्रोसीजर जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे ही आपको करना है. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? आइटम्स इसके मेंशन करेंगे. लाइक एप्पल, ग्रीन एप्पल. यहाँ पे मैंने एक आइटम मेंशन किया दिस एप्पल आइटम का, और मैं दूसरा आइटम मेंशन कर रही हूँ. तो आप यहाँ पे डिफरेंट आइटम्स मेंशन कर सकते हैं. व्हाट इट I'll save this, so we'll see the result. देखिए यहाँ पे ये जो एप्पल आइटम है मैंने इसका और एक सब लिस्ट क्रिएट कर लिया. मैंने आपको बताया बाय डिफॉल्ट जो एक लिस्ट होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू आता है या बुलेट आता है एंड डिस्क. बट यहाँ पे सर्कल आ गया बिकॉज हमने इसका जो आउटर लिस्ट है वहाँ पे हमने सर्कल टाइप मेंशन किया है. अगर आप चाहते हैं कि सर्कल ही रहे तो ठीक. इफ यू वांट टू चेंज द टाइप आप यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट मेंशन कर सकते हैं. आ गया. ठीक है. सो हमने एक नेस्टेड लिस्ट भी क्रिएट कर लिया. हमने देखा कि ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, डेफिनेशन लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, एंड वी सॉ नेस्टिंग ऑफ लिस्ट्स आल्सो. सो दिस इज ऑल अबाउट लिस्ट्स. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. नाउ वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज.